Hello, future officers. Welcome to Decoded once again. A very warm welcome to all of you. Today, we are going to take up the solution to revision test assignment number 11. The purpose of this test is to make you revise all the concepts which have been covered so far. This test would be covering speed, distance, time, work, average, percentage, ratio, proportion, mixture, number system, HCF, LCM, even odd number, prime and composite number. It would cover all the topics which we have already done. So now we will take up the discussion to this test. And I would like to say one thing to all of you guys who are watching this, that if you think this initiative is very much helpful to you and it is making your concepts very clear, then I request all of you that you please share it with other needy people so that each and everyone can get the benefit out of it. Okay, and one more announcement is there, that is from Thursday onwards at 9:30 a.m. we'll be providing GS practice MCQs based on the PYQs. Okay, so you can also take benefit from that. That would help you revise all the concepts of GS, and that would be through the use of PYQ. Okay, so now let's start with this test assignment number 11. So okay, now let's move on to this. The first question goes like, in in a XYZ company there are two types of employee, professional and normal workers. If the average salary of all employees is 2000 rupees and of total 10 professionals working is rupees 3000, the number of non-professional working in the company are, if their average salary is 1500. Okay, so here what we have given, that if we add the salaries of all the employees, let's say this is the salary of all the employees, x1, x2, x3, xn. Okay, and divided by number of employees, total number of employees, would give the average salary, that is your 2000. It is already given. Now we are given that if we add the salaries of प्रोफेशनल पीपल जो हैं उनकी सबकी आप सैलरीज ऐड कर दोगे, और 10 प्रोफेशनल पीपल है यहाँ दिया हुआ है, तो आपके पास उनका एवरेज आ जाएगा 3000 रुपीज. ठीक है, और जो नॉन प्रोफेशनल है अपॉन नंबर ऑफ नॉन प्रोफेशनल, समझ लीजिए उनको एक्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ नॉन प्रोफेशनल को, तो उनकी सैलरी है आपके पास 1500. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. तो अगर आप टोटल सम जो नॉन प्रोफेशनल हैं उनकी सैलरीज का अगर आप सम लोगे तो वो आएगा 1500 इंटू एक्स, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ नॉन प्रोफेशनल को एक्स ले लिया. और प्रोफेशनल वाले का आ जाएगा आपका सम जो है सैलरीज का, प्रोफेशनल पीपल की जो सैलरीज है उनका सम आ जाएगा 3000 इंटू 10, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये जो चीज है मेरे पास x1, x2, x3, x4, xn, ये क्या है? सम ऑफ प्रोफेशनल सैलरी प्लस नॉन प्रोफेशनल सैलरी अपॉन नंबर ऑफ प्रोफेशनल जो कि है 10 प्लस नंबर ऑफ नॉन प्रोफेशनल जो कि है x इज इक्वल टू योर 2000. तो यहां पर आप इसमें डाल दो 1500 x प्लस 30,000 जो कि आपका यहां से मिलता है, हो जाएगा 10 प्लस x इज इक्वल टू योर 2000. इजंट इट? तो आप इसको सॉल्व कर लो. 1500x प्लस 30,000 इज इक्वल टू योर 20,000 प्लस 2000x. So this becomes your 500x is equal to your 10,000. Zeros get cancelled, 5 one time and 20, x is equal to 20. So जो हमने नंबर ऑफ यहाँ पर हमने अगर जो नंबर ऑफ यहाँ पे नॉन प्रोफेशनल को माना था वो x माना था. ठीक है, x की वैल्यू आ गई आपके पास क्या, जो कि है 20. ठीक है, तो इसका आंसर है आपके पास 20 जो कि है A. ओके, now we'll move on to next question, that is your question number 2. So question number 2 says there are two container A and B, okay, that contain juice and water in the ratio 1:4.
एंड 4:1 रिस्पेक्टिवली। जैसे कि यहाँ पे 1:4 है, अगर आप यहाँ जूस माने या वाटर माने, और इसमें 4:1 है आपके पास, ठीक है। इफ बोथ आर मिक्स द न्यू मिक्सचर हैज जूस टू वाटर रेशो 1:3। जो नया इन दोनों में से कुछ कुछ मिक्सचर निकाला, उनको मिक्स कर दिया। देन द रेशो इन विच लिक्विड्स इन कंटेनर ए एंड बी आर मिक्स टू गेट द न्यू मिक्सचर इज। ये कह रहा है कि ए में से कितना लीटर लिया होगा और बी में से कितना लीटर, ताकि ये आ जाए। तो समझ लीजिए ए में से x लीटर लिया था, वाई में बी में से वाई लीटर लिया। तो ये अब अब जो ये x लीटर आपने उठाया है, निकाला इसके अंदर से, इसके अंदर जूस टू वाटर रेशो ए वाले में क्या होगा, 1:4। तो इसका मतलब जूस हो जाएगा 1x और वाटर हो जाएगा 4x। सिमिलरली जब आपने बी वाले में से y लीटर्स निकाला, तो इसके अंदर जूस हो जाएगा 4y और वाटर हो जाएगा 1y, ठीक है। अब आपके पास आगे दिया हुआ है कि जब ये x प्लस वाई को जो आपने x प्लस वाई का मिक्सचर बनाया, इसके अंदर क्या हुआ मेरे पास, इसके अंदर जो हो रहा है वो ये है कि इसमें जूस टू वाटर का रेशो जो है 1:3 हो जा रहा है, ठीक है आपका। तो अब आप देखो, जो जब इन दोनों को मिलाया तो जूस कितना बनेगा, जूस आपका बन जाएगा x प्लस 4y, क्योंकि y जब लोगे तो y में जूस कितना है 4y और x में जूस कितना है 1x। और वाटर कितना बनेगा, वाटर बनेगा ये वाला जो है आपका 4x प्लस 1y। अब जूस टू वाटर का रेशो दिया हुआ है, तो जूस है x प्लस 4y और वाटर आपके पास है 4x प्लस y इज इक्वल टू 1:3 दिया ना यहाँ, तो 1 ऊपर 3 नीचे। तो बस अब हो गया सॉल्व। 3x plus 12y is equal to 4x plus y. Okay, so this becomes your 11y is equal to x, ठीक है। तो आपका आ जाएगा x by y is equal to 11/1। तो आपका रेशो आ जाएगा यहाँ पे 11:1, कि जो ये दोनों लिक्विड्स थे जो ये दोनों थे कंटेनर ए और बी, इनमें से जो x और y लिक्विड हमने मिलाया आपस में, जिसकी वजह से जूस टू वाटर का रेशो 1:3 आया, तो उसका जो लिक्विड्स का रेशो आपका आएगा वो होगा x by y, जो होगा 11:1। तो इसका आंसर है आपका बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। So now come on to question number 3. Raju was able to buy 100 kg of sugar for a certain price. Then due to bumper production in a year, the price fell by 20%. Then for the same price, how much sugar in kg can he buy? जितने पहले रुपए में आ रहा था उतने में अब वो कितने किलो खरीद पाएगा, ये है। समझ लीजिए पहले आपने x पर केजी थी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपने 100 केजी खरीदी थी पहले, तो कितनी आएगी वो 100x की, x रुपीज की 1 केजी आ रही थी पहले, रुपीज x पर केजी था। अब तो 100 किलो कितने की आई थी, 100x रुपीज की, ठीक है। अब देखो 20% फेल हो गया, मतलब तो x का 20% कितना होगा, तो ये आपके पास आएगा 0.2x। तो जो नया प्राइस है वो जाएगा x माइनस 0.2x, यानी कि 0.8x, इजंट इट, है कि नहीं, रुपीज 0.x पर केजी। अब देखो 0.8x का 1 किलो आ रहा है, तो 1 रुपए का कितना आएगा, 1 रुपए का आएगा, तो x रुपीज का कितना आएगा, मतलब x का, जब 0.8x का आपके पास आ रहा है 1 केजी, तो x रुपीज का कितना आएगा आपके पास 1 अपॉन 0.8 केजी आएगा। तो 100x का कितना आएगा 1 अपॉन 0.8 इंटू 100, इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो यहां से आपका ये 10 ऊपर शिफ्ट होता है, 4 2 टाइम्स 25 एंड 2 एंड दिस 5 इज इक्वल टू 125। तो आपका 125 केजी आ जाएगा, जो है आपका आंसर बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो है क्वेश्चन नंबर आपका 4। There are two shopkeepers A and B, both claim they earn 20% profit on selling a certain item for rupees 3000, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आपके पास है रुपीज 3000 और दोनों के लिए प्रॉफिट है आपके पास कितना
20%, ये आपको दिया है। बट ए कैलकुलेट्स प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। जो ए है ना मेरा, वो कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट निकालता है। मतलब जैसे कि उसका सेलिंग प्राइस है 3000 माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ये प्रॉफिट का जो परसेंटेज है, तो ये आ जाएगा 20/100। ठीक है, तो आप इस वाले का कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो ए की टर्म्स में, जो आपके पास आ जाएगा यहाँ, इससे कैंसिल, ये 1/5, तो दिस बिकम्स योर 2500 रुपीज। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इतना ही आएगा। अब आगे चलते हैं। एंड बी कैलकुलेट्स ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब बी कैलकुलेट्स ऑन सेलिंग प्राइस का मतलब है, बी ऐसे बोल रहा है कि उसको प्रॉफिट हुआ सेलिंग प्राइस का 20%। सेलिंग प्राइस का 20% आप मान लोगे तो 3000 सेलिंग प्राइस, 0 0 कैंसिल 0, तो इसको हुआ 600 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, इसको 600 रुपए का हुआ। तो ए को कितने रुपए का हुआ प्रॉफिट? ए को हुआ, उसका सेलिंग प्राइस है कितना, 3000, और कॉस्ट प्राइस है 2500, तो ए को हुआ 500 रुपए का। अब ये कह रहा है कि देन द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट, डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट क्या आएगा? 600, बी का 600 है प्रॉफिट, इसका 500 है, तो 600 माइनस 500 इज इक्वल टू ₹100। तो इनका डिफरेंस है 100। बी आंसर आ जाएगा इसके पास आपका। ठीक है, अब आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। Two friends A and B are working together, but A falls ill and has to leave the work in between, and then B finishes the remaining work in 23 days. ठीक है, if A takes 45 days and B takes 40 days to finish a certain work individually, then after how many days did A left the work? ठीक है, अब ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास दिया है कि जो अगर B की बात करो आप, तो ये 40 डेज लेता है, 40 डेज लेता है एक यूनिट वर्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, isn't it? तो ये 1 डे में कितना काम करेगा? 1/40 यूनिट्स। ठीक है, अब ये 23 डेज में कितना काम कर देगा फिर? बी की बात करोगे अगर, तो 23 डेज में कितना कर देगा यूनिट मेथड से? एक दिन में तो कर रहा है, 1 डे में तो कर रहा है 1/40 यूनिट, 23 डेज में कर देगा 1/40 इंटू 23, यानी कि 23/40। अब टोटल वर्क कितना मानते हैं हम? 1 यूनिट। ठीक है, 23/40 यूनिट्स तो काम इसने कर दिया बी ने। तो इसमें काम जो इस अगर 1 यूनिट में से आप अब ये जो बी ने खुद अकेले काम किया उसको माइनस कर दोगे, तो जो दोनों ने मिलके काम किया था वो आ जाएगा, है ना, जब ए ने छोड़ा होगा। तो आप यहाँ पर 1 में से माइनस कर दीजिए 23/40, ये आपके पास आ जाएगा इधर 40 आ जाएगा। 40 माइनस 23 इज इक्वल टू 17/40 यूनिट्स का जो वर्क है उन्होंने मिलके किया। ठीक है, अब हम इनका देखते हैं, ये जब कंबाइंड, अगर ये कंबाइंड काम कर रहे होते दोनों, तो कितने दिन में कर देते? तो उसके लिए आप क्या करोगे? ए का 1 डे वर्क कितना है? 1/45, और बी का कितना होगा 1 डे वर्क? 1/40। तो इन दोनों का मिला के 1 डे वर्क निकाल लो, 1/45 प्लस 1/40 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, यहाँ एलसीएम इसका आएगा 360, निकाल के देख सकते हो। और यहाँ आएगा, क्योंकि अब इसको 360 बनाया तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 8 से, तो 8, और यहाँ पे 9 से करना पड़ेगा 36 बनाने के लिए, तो यहाँ 9, तो ये आपके पास आएगा 17/360। आप एलसीएम निकाल के चेक कर सकते हो। ठीक है, इसका आपको अभी एक बारी देख लो यहाँ पे एलसीएम निकाल के भी। जैसे 45 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 9, 3 इंटू 3, और 40 को लिख सकते हो 2 इंटू 2, इंटू 2 इंटू 5, 5 8 40। ओके, सो यहाँ पे 2 के पावर, ये है 2 की पावर 3, और ये 5 और 3, तो 5, तो इसका एलसीएम आपके पास आता है यहाँ। एलसीएम आप निकालोगे तो आ जाएगा सबकी जो भी प्राइम नंबर उनकी मैक्सिमम पावर 2 की पावर 3, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है उसकी 3 की पावर 2 है यहाँ पे, और एक 5 है, तो ये आपका आता है 360। ठीक है, तो ये इतना आ गया। अब इसका मतलब है कि दोनों जब एक दिन में दोनों इतना काम कर देंगे वो। ठीक है, तो एक यूनिट काम, जब दोनों एक यूनिट काम करेंगे तो कितने डेज में कर देंगे? 360/17 में। तो एक यूनिट काम जो है वो दोनों मिलके कर देंगे आपके इतने डेज में। ठीक है, तो जब आपके पास अगर अब
काम बचा कितना था, 70/40 यूनिट्स, जो पहले हुआ जब दोनों एक साथ किया। तो 1 यूनिट काम इतने दिन में कर रहे हैं ये, तो 70/40 यूनिट्स कितने में करेंगे, 360/17 इंटू 17/40, 17 कैंसिल, 4 गए, 4 9 का। तो दोनों ने मिलकर जो काम किया वो 9 डेज के लिए किया इसका मतलब। और कितना काम किया, 17/40 यूनिट्स। तो ए ने जो है वो 9 दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका बी, क्योंकि इसने ये पूछा ना, आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लेफ्ट द वर्क। ठीक है, अब यहाँ डिड लगा हुआ है ना, तो आप आपका ये है कि ए 9 डेज के बाद छोड़ गया, और यहाँ डिड लगा है तो ये एक ग्रामेटिकल एरर है, यहाँ पे लीव आएगा लेफ्ट की जगह। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। अब हम आगे चलते हैं, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो, अब ये कहता है ना, स्कूल एथलेटिक्स कंपटीशन, अगर यूपीएससी जो है ना, अगर स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का कोई मुश्किल क्वेश्चन बनाएगा तो इस तरीके का बनता है, इससे ज़्यादा टफ नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसको ये भी देखना है कि टाइमली हो जाए काम, क्योंकि ये सिर्फ एक सिलेक्शन प्रोसेस का एग्जाम है। कोई इसमें कैट की तरह आपका वो चेक नहीं करना उसे, बहुत ज़्यादा हाई लेवल का एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड एक सिविल सर्वेंट में होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपसे सीसैट पूछा जाता है। देखिए अब आगे क्या है, इन स्कूल एथलेटिक कॉम्पिटिशन इज ऑर्गेनाइज्ड, 2 बॉयज ए एंड बी टुक पार्ट इन अ 100 मीटर रेस। ठीक है, रेस थी 100 मीटर की। यहाँ पर boy A can run at a speed of 1.66 meter per second, but when the race started, the boy A slipped and B got a head start of 4 meter. अच्छा, but still boy A could beat boy B by 12 seconds, then the speed of boy B in meter per second was। ठीक है, देखो अब जब रेस स्टार्ट हुई ना, तो ये फिसल गया ए वाला बंदा, तो बी इससे कितना आगे निकल गया, 4 मीटर। ठीक है, टोटल था 100 मीटर आपके पास। अब बी यहाँ पर है, बी को कवर करना है 96 मीटर्स आगे का, और ए को पूरा 100 मीटर कवर करना है, कितनी स्पीड से, 1.66 स्पीड से। तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू आपका डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस आपका 100 मीटर है, टाइम आपको पता नहीं है, तो जो ए के लिए टाइम हो जाएगा वो होगा टी इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना, 100 अपॉन 1.66, ये आपका सेकेंड्स में आ जाएगा। अब देखो ये कह रहा है कि इसने फिसलने के बाद भी बी को जो है हरा दिया 12 सेकंड से, तो जो 96 मीटर कवर करने के लिए फिर बी कितना टाइम लेगा, इतना तो लेगा ही, और 12 सेकंड और लेगा, क्योंकि 12 सेकंड से हराया। तो टी बी जो हो जाएगा, बी के लिए जो टाइम हो जाएगा वो होगा 100 अपॉन 1.66 प्लस 12, इजंट इट, क्योंकि ये तो इसने तो इतने टाइम में कवर कर दिया, ए ने तो, ये ए का है, टी ए ने तो इतने टाइम में कवर कर दिया 100 मीटर को, और फिर भी 12 सेकंड से बी को हरा दिया। तो अब 96 मीटर कवर करना है बी को, तो क्योंकि वो पहले से ही 4 मीटर आ गया, तो इतने ये टाइम तो लगेगा ही जितना ए ने लिया, और ऊपर से 12 सेकंड से हारा, तो ये 12 सेकंड भी और लेगा। टी भी ये हो गया। तो अब आपको पता लगानी ए की बी की स्पीड, तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब बी के लिए 96 मीटर कवर करने थे, और टोटल टाइम टी बी का आपने निकाले हुआ है 100 अपॉन 1.66 प्लस 12। तो आप इसको सॉल्व कर लो, ये टी बी आपके पास आ जाएगा यहाँ 72.24 सेकेंड्स, तो ये आएगा 96 अपॉन 72.24, तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ 1.3289 मीटर्स पर सेकेंड, इसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 1.33 मीटर्स पर सेकेंड आपका। तो आपका इसमें 1.33 बी में है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। A floor has a length of 24 meter and breadth of 18 meter. Then what is the smallest number of identical square tile that can be laid on the floor without the need to break any tile? अच्छा, अब देखो ये एक HCF LCM का क्वेश्चन है, कैसे है देखिए। अब सबसे छोटी टाइल लगानी है, मतलब एक टाइल ऐसी होनी चाहिए जो इन दोनों में फिट आ जाए। 24, जैसे कि ये आपका फ्लोर था, इधर देखो फ्लोर था आपका ये 18 मीटर और ये 24 मीटर। तो टाइल एक ऐसी होनी चाहिए जो मतलब
इसमें यहाँ भी ऐसे फिट आए कि तोड़नी ना पड़े और यहाँ भी ऐसे फिट आए। तो मतलब एक ऐसा नंबर टाइल की डायमेंशन होनी चाहिए, वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए। तो जब ऐसा नंबर चाहिए हमें जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए, तो हम इनका क्या करते हैं, इनको पहले फैक्टर्स निकालेंगे। 24 को आप ओपन कर दीजिए, ये आपके पास आएगा 2 इंटू टू 4 इंटू 2 इंटू 3 6, ठीक है। और 18 को आप कर दीजिए, आपका आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ऐसा नंबर हमें ढूंढना है जो इन दोनों को ही वो कर पाए। तो वो कौन सा नंबर होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा? दोनों में कॉमन क्या क्या है? 2 है और 3 है। 2 है और 3, तो इसका एचसीएफ आ गया आपका 6। तो जो वो टाइल है उसकी डायमेंशन होनी चाहिए 6 मीटर साइड की। तो मतलब एक स्क्वायर टाइल लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो 6 ही ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो जो टाइल की डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 6 इंटू 6, क्योंकि स्क्वायर टाइल लगेगी वो। अब एरिया, अब इसका, अब इस पूरे एरिया में फिट करनी है तो एरिया देख लो कितना है, एरिया निकाल लो। एरिया इसकी स्क्वायर बन रहा है फ्लोर, तो आपका आ जाएगा 24 इंटू 18 मीटर स्क्वायर। और टाइल का एरिया आ जाएगा 6 इंटू 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया टाइल का एरिया, और ये आपका एरिया आ गया फ्लोर का। अब नंबर ऑफ टाइल कितनी लगेंगी? अगर आप फ्लोर के एरिया को डिवाइड कर दोगे टाइल के एरिया से, तो आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है, क्योंकि वही टाइल इतने में ले करेंगे ना, इजंट इट। तो आपका ये मीटर स्क्वायर था, ये मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो 6 वन टाइम 6 आपका, 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, तो हो गया 4 इंटू 3। ये आपका 12 टाइल्स आ जाएंगी, मतलब 12 टाइलें जो हैं इसको पूरा कवर कर लेंगे। आपका आंसर आ गया ए इसमें, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8। So question number 8 is, there are three distinct prime number a, b and c and they are in ascending order. Prime number हैं और वो ascending order में है, and further their sum is an even number. और इन prime number का जो sum है वो even number है, then which of the following is correct? ये देखना है आपको। अब देखो प्राइम नंबर क्या होता है, जिनके जो फैक्टर हैं, अगर कोई प्राइम नंबर x मान लीजिए कोई प्राइम नंबर है, तो उसका मतलब है उसके दो ही फैक्टर होंगे, एक तो x होगा और एक 1 होगा। फैक्टर का मतलब है उसको दो ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 1 डिवाइड कर सकता है और वो खुद कर सकता है। तो ऐसे छोटे प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर है 2, क्योंकि 2 का फैक्टर सिर्फ 2 और 1 हो सकता है। फिर अगला 3 है, फिर 5 है। अब ये असेंडिंग में मांग रहा है, तो मतलब सबसे छोटा बड़ा बड़ा तो ये हो गया। अब मेरे को ये अश्योर करना है कि फर्दर देयर सम इज एन इवन नंबर, तो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाता है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए, मतलब ए ऐसे होना चाहिए ए, ठीक है। असेंडिंग का मतलब ये हो जाएगा कि बी ए से बड़ा है और सी बी से बड़ा है। तो 2 + 3 5 + 5 इज इक्वल टू 10। तो 10 एक इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हैं। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 1, तो ये 5 आपका क्वेश्चन छोड़ेगा, रिमाइंडर 0 छोड़ेगा। ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 देता है, वो आपका इवन नंबर होता है। तो 10 जो है जब 2 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 दे रहा है, ठीक है। अब ये आप इसका मतलब ए आपका 2 हो गया, बी आपका 3 हो गया और सी आपका 5 हो गया। ये कंडीशन क्योंकि सेटिस्फाई होगी। अब उस ऊपर चलो ऑप्शन के हिसाब से, a माइनस बी इंटू सी इज एन इवन नंबर। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा? 2 - 3 × 5, ये आपके पास हो जाएगा -1 × 5। क्या ये इवन नंबर है? नहीं, ये -5 आएगा जो इवन नहीं है, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। सेकेंड, b माइनस सी इंटू ए, मानिए b माइनस सी इज 3 - 5 × 2, ये आपके पास आ रहा है 2 × -2, ये आपका -4। क्या ये ऑड नंबर है? नहीं है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते, तो ये भी आपका कट जाएगा स्टेटमेंट। अब सी पे चलो, सी माइनस ए, सी आपका 5 है, माइनस ए 8, ए 2 है, इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 3 × 3, जो कि आपका आता है 9। 9 एक इवन नंबर नहीं है, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी कट जाएगा आपका, क्योंकि 3 की टेबल में आता है 3 से डिवाइड होता है। अब डी पे आ जाओ, डी पे है a + b इंटू सी। डी है ना, a + b इंटू सी। तो a + b, a आपका क्या है? 2 है, b कितना है आपके पास? b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है आपकी 5।
तो ये आपका आ जाएगा 3 + 2 5 × 5 = 25। तो 25 तो एक ऑड नंबर है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये एक ऑड नंबर है, तो ये आपका सही होगा। तो इसका आपका आंसर है डी यहाँ पर। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉम्प्रीहेंशंस के ऊपर। ठीक, कॉम्प्रीहेंशंस को देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा इसे। कॉम्प्रीहेंशन में कुछ नहीं करना होता, आप कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ो, जो भी कॉम्प्रीहेंशन के हिसाब से, अपने आप से नहीं, बाहर की सिचुएशंस को नहीं, जो रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट है उसको नहीं कंसीडर करना। जो कॉम्प्रीहेंशन के हिसाब से सही हो पा रहा है ना, जो उसमें लिखा हुआ है, उसके हिसाब से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके बेसिस पे कंसीडरेशन लेनी है। अपने आप जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से नहीं। अगर ऐसे कह देता है, इसे समझ लीजिए एग्जाम्पल के फॉर्म में ये है कि अगर कॉम्प्रीहेंशन में आपको ऐसे कहता है कि द कैट हैज 6 लेग्स, तो आप तो ये सोचोगे कि यार कैट की तो 4 लेग्स होती हैं, 6 बोल रहे हैं, तो आपको 6 लेग्स को राइट मानना होगा, बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को नहीं मानना, जो कॉम्प्रीहेंशन लिखा है उसको मानना। चलिए शुरू करते हैं। इन सिंपल मैटर्स लाइक शू मेकिंग वी थिंक ओनली a specially trained person will serve our purpose. But in politics, we presume that everyone who knows how to get votes knows how to administer a state. We are ill is a guarantee of a specific preparation and technical competence. We do not ask for handsomest physician, ठीक है, or the most eloquent one. Well then, when the whole state is ill, we should not look for the service and the guidance of the wisest and the best. ओके, ये कह रहा है अगर सिंपल मैटर्स की बात करें, जैसे कि शू मेकिंग, वी थिंक ओनली ऑफ स्पेशली ट्रेन्ड पर्सन विल सर्व आवर पर्पस। जैसे कि अगर जूते बनाने की बात है तो हम ये मानते हैं कि जो स्पेशली ट्रेंड होगा जूते बनाने में वो ही हमारे जूते बना सकता है। पर पॉलिटिक्स में वी प्रिज्यूम दैट एवरीवन हु knows how to get votes knows how to administer state, ठीक है। when we are ill is a guarantee of specific preparation and technical competence. We do not ask for the handsomest physician or the most eloquent one. Well then, when the whole state is ill, should we not look for the service and guidance of the wisest and the best? जब हम आप बीमार हो जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा जो अच्छी कॉम्पिटेंस और टेक्निकल नॉलेज वाला डॉक्टर है उसी के पास ही तो जाते हैं। तो जब स्टेट अगर खराब हो रहा है तो क्या हम ऐसे आदमी को नहीं चुनेंगे जो बहुत वाइज हो और बेस्ट हो, ना कि सिर्फ ऐसे आदमी को चुनेंगे जो वोट लेना जानता हो। चलिए आगे बात करते हैं। Which of the following best reflects the message of the author of the passage? We assume that in a democracy any politician is qualified to administer a state. नहीं, ऐसा कहीं नहीं कह रहा है। Politicians should be selected from those trained in administration. Okay, इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं कि हमें ऐसा पॉलिटिशियन चुनना चाहिए जो एडमिनिस्टर कर पाए ठीक से, ना कि जो वोट लेना जानता हो। We need to devise a method of bearing incompetence from the public office. ऐसा कहीं नहीं कह रही है ये पैसेज। As voters select their administrator, the eligibility of politician to administer state cannot be questioned. ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो सिर्फ बी ही मैच कर रहा है, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा, तो इसका आंसर 9 का आपका बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। While steady economic growth, higher literacy and increasing skill levels, the number of Indian middle class families has gone up. With the steady economic growth, higher literacy and increasing skill levels, the number of Indian middle class families has gone up exponentially. Direct result of the affluence have been changes in dietary patterns and energy consumption levels. People have moved to higher protein based diet like milk products, fish and meat, all of which need significantly more water to produce than cereal based diets. Increasing use of electronic and electric machine gadgets and motor vehicles need more and more energy, and and generation of generation of energy needs water. Which one of the following statement best reflect the crux of the passage? People should be persuaded to continue with mainly the Indian traditional based cereal diets. ऐसा कहीं नहीं कह रहा है ये बस ये कह रहा है कि जैसे कि लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है तो उनका डाइटरी पैटर्न चेंज हो रहा है, वो ज़्यादा प्रोटीन बेस्ड डाइट खा रहे हैं जिनको बनाने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए होते हैं सीरियल के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं कह रहा है जो ये फर्स्ट में कहना चाह रहा है ना,
कि पीपल शुड बी परसुएडेड टू कंटिन्यू विद मेनली इंडियन ट्रेडिशनल सीड बेस्ड डाइट, ऐसा कहीं नहीं कह रहा है ये, ठीक है। इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन डेवलपिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड कैपेसिटी फॉर मोर एनर्जी जनरेशन इन कमिंग ईयर्स, ऐसा भी कहीं नहीं कह रहा ये। मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ कल्चरल एंड सोशल बिहेवियर ऑफ द पीपल, ऐसा भी ये कहीं नहीं कह रहा है। ये बस ये कह रहा है कि लोग जो है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई लिटरेसी की वजह से लोग के पास पैसा बढ़ रहा है, तो उनका वो चेंज आ रहा है डाइटरी पैटर्न में। मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा इसने। वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडिया नीड टू बी चेंज ड्रामेटिकली इन द कमिंग ईयर्स, हाँ, क्योंकि क्या हो रहा है कि डाइटरी पैटर्न चेंज हो रहे हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक मशीन्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसके लिए पानी और ज़्यादा चाहिए। तो वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को चेंज करना पड़ेगा इंडिया में, क्योंकि इंडिया के रिस्पेक्ट में ही बात हुई है ना यहाँ पर, कि स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, हाई लिटरेसी आ रही है और स्किल लेवल इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से इंडियंस की जो परचेसिंग पावर बढ़ रही है, उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, प्रोटीन डाइट पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा वाटर यूज़ हो रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस को ठीक करना होगा। तो डेफिनेटली डी आपका इसमें सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट आंसर बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा तो इसने कहीं नहीं कहा कि परसुएड करो लोगों को, तो डी इसका आंसर बन रहा है। सो विद दिस वी आर डन विद दिस test assignment number 11. It definitely would have helped you to revise the topics of speed, distance, time, work, average, ratio, proportion, mixture, number system, HCF and LCM. So from Thursday onwards, what we will be doing is that on the basis of the PYQs which have been asked in UPSC Civil Services Prelim General Studies paper, not CSAT, we are designing a revision test for you. तो जो PYQs पूछे गए हैं उसमें से हम टॉपिक उठा के आपके लिए क्वेश्चन डिजाइन करेंगे, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपका रिवीजन बहुत आसानी से और जल्दी से हो जाएगा। तो आप उसको टेस्ट को आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। जैसे आपके लिए सीसैट के क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं 2 बजे, तो वो 9:30 बजे से आपके लिए पीवाईक्यू के बेसिस पे जीएस वाले क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, उससे आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। इफ यू थिंक दिस चैनल इज helping you, then please suggest it to your friends also. Thank you so much. Keep working hard. Success is definitely yours. Thank you.